and Shri C.P. Radhakrishnan were found valid. As you are aware, in the vice presidential election, all members of parliament, including the nominated members, are eligible to cast their votes. There are 788 electors, 245 from Rajya Sabha and 543 from Lok Sabha. There are 6 vacancies in Rajya Sabha and 1 vacancy in Lok Sabha. Thus, there are 781 electors. The polling for the Vice Presidential Election 2025, which commenced at 10 a.m. today, the 9th of September 2025, in room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled, as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes, and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री
बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377 यहाँ पे 377 है, यहाँ एक सेकंड कोटा 300 300 एक सेकंड राधा कृष्णन जी को 452 श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। पंद्रह 767 धन्यवाद। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। यहां आपको बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार को मिले 300 वोट, सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार को मिले हैं 452 वोट और सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति। चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो सुबह 10 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, शाम 5 बजे तक चली है। पहला वोट पीएम मोदी ने डाला था। आपको बता दें कि वोटों की पूरी जो प्रक्रिया है शाम 5 बजे तक चली, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई और अब ठीक 7:30 बजे देश के नए उपराष्ट्रपति का ऐलान हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं 452 वोट, वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 5 बजे वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हुई थी और वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद तकरीबन 7:30 बजे ऐलान हो गया कि देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मध्य रही। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी, शाम 5 बजे तक चली है। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वोट डाला। विपक्ष के सांसदों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अब सबके सामने हैं। देखिए, पहले ही तय था कि 8 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो 7:30 बजे ऐलान हो गया। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है और 452 वोट मिले हैं। अब ये घर की तस्वीरें हैं, सीपी राधाकृष्णन के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन 452 वोट इन्हें मिले हैं, विजयी रहे हैं, देश के 15वें उपराष्ट्रपति घोषित किए गए हैं। शाम को 7:30 बजे आ गए नतीजे। अब सीपी राधाकृष्णन के घर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उनके घर की तस्वीर है और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। एनडीए के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। इंडिया के उम्मीदवार थे, आमने सामने की टक्कर थी। अब आपको ये बता दें कि नतीजे आ गए हैं सामने। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी में थी। सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया देखिए आज सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, शाम 5 बजे तक जारी रही थी। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला था। विपक्ष के सांसदों ने भी मतदान किया। वोटों की गिनती 5 बजे के बाद शुरू हो गई थी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं सामने। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मध्य थी। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं।
तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। तो सीपी राधाकृष्णन देखिए बने गए देश के 15वें उपराष्ट्रपति। तो इस वक्त आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं देश की। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। वी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको 300 वोट और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। इस बात में कोई शक नहीं था, पहले से ही सीपी राधाकृष्णन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के मुकाबले में मजबूत थे। 452 वोट लेकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, जो अभी तक महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद एनडीए ने उन पर भरोसा किया और अब भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वो काफी मजबूत शुरू से ही नजर आ रहे थे और आखिरकार उन्हीं के नाम पर मोहर लगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो अपने कैंडिडेट लेकर आए थे विपक्ष, वी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं, यानी 152 वोट का फर्क यहां पर देखा जा रहा है। पिछली बार की अगर बात की जाए 2022 में जब चुनाव हुआ था, जब जगदीप धनखड़ चुने गए थे, उनको 528 वोट मिले थे और अब सीपी राधाकृष्णन को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि ये तस्वीरें पहले की हैं, लेकिन देश भर से उनको बधाइयां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, देश के दूसरे नागरिक सीपी राधाकृष्णन। सुबह 10 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मंगलवार सुबह 9 सितंबर वो तारीख जो भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और शाम को जिस तरह से बताया गया था कि 7 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो वो रिजल्ट आ चुका है और ये संसद टीवी के सौजन्य से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति, जिन्हें मिले हैं 452 वोट। तो हम कह सकते हैं कि लग रहा था वो शुरू से ही मजबूत थे। और आरती मेरे साथ जुड़ी है, हमारी सहयोगी, और लगातार हम इस कॉल पर बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि और हमारे साथ जो ऑनलाइन पर नेता जुड़े, हालांकि सांसद इस वक्त जाहिर सी बात है कि जिन्होंने वोट दिए हैं तो उन सबकी जी आरती, सीपी राधाकृष्णन का और वी सुदर्शन रेड्डी का जो मुकाबला था उसमें सीपी राधाकृष्णन मजबूत तो नजर आ रहे थे। आरती, बिल्कुल एनडीए मजबूत थी और सीपी राधाकृष्णन को लेकर शुरू से उम्मीदें जताई जा रही थी और इस बीच ये भी सवाल उठ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के चुनाव, चाहे आप राज्यसभा के चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो उसमें क्रॉस वोटिंग को लेकर एक डर रहता है। वोट कटने का भी एक डर कहीं ना कहीं रहता है कि अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो उस लिहाज से, आंकड़े के लिहाज से एनडीए शुरू से मजबूत थी। और लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगी तो आखिर ऐसी कितनी क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि मजबूत दावेदार एनडीए ही नजर आ रही थी। और अगर हम सीपी राधाकृष्णन क्रॉस वोटिंग की अगर बात की जाए तो क्रॉस वोटिंग का सिर्फ एनडीए के लिए खतरा नहीं था, और बार बार एक आवाज उनकी तरफ से कही जा रही थी, वी सुदर्शन रेड्डी की अंतरात्मा की आवाज सुने और देश के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वोट करें। तो वहीं क्रॉस वोटिंग का संशय इंडिया गठबंधन के लिए भी बना हुआ था कि कहीं उधर से कुछ वोटिंग ना ऐसी हो जाए, लेकिन 452 वोट मिले हैं। और सबसे अहम बात यहां पर आती है कि वी सुदर्शन रेड्डी भी 300 वोट पाने में कामयाब रहे। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात आरती, देखिए एक चीज और है, 452 वोट मिले हैं जी, 442 संख्या थी जी, 442 संख्या थी एनडीए के सांसदों की, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर जी। इसका मतलब 10 वोट और उनको मिले हैं निर्दलियों के, आप पता नहीं किसने वो वोट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉस वोटिंग के खतरे के बावजूद सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग पहले भी तय मानी जा रही थी। एनडीए उम्मीदवार के रूप में राधाकृष्णन को अपनी पार्टी और सहयोगी दलों का मजबूत समर्थन पहले से मिल रहा था। और देखिए, बहुमत का जो आंकड़ा है जीत के लिए वो 391 का था, तो उस लिहाज से काफी मजबूत इस जीत को हम कह सकते हैं एनडीए के लिहाज से। नासिर जी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के पास 311 सांसद थे। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 234
और राज्यसभा में 77 सांसद थे। कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर पर। नमस्कार कृष्ण बेदी जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। जी, बहुत बहुत बधाई। एनडीए के गठबंधन उम्मीदवार माननीय नए उपराष्ट्रपति हमारे विजयी घोषित हो गए हैं, और मैं अपनी ओर से और एनडीए गठबंधन के सभी दलों को और नए उपराष्ट्रपति जी को। कृष्ण बेदी जी, सुबह से एक चर्चा चल रही थी और जिस तरह का इस बार दिलचस्प चुनाव देखने को मिला था, हालांकि कोशिश हमेशा ये होती है कि सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो एक क्रॉस वोटिंग को लेकर तरह तरह के क्या चर्चाएं चल रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि जो एनडीए के पास वोट थे उससे ज्यादा वो 10 वोट ज्यादा लेकर आए हैं। देखिए, ये व्यक्तित्व भी होता है, रणनीति भी होती है, योजना भी होती है जी। और कई बारी गठबंधन के सहयोगी, ठीक है, बेशक से इंडी गठबंधन में होंगे, परंतु पर्सनैलिटी के तौर पर हमारे जो कैंडिडेट एनडीए के थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व और निष्ठावान एक नेतृत्व वो लोगों ने वोट दिया है। इसलिए ये कैंडिडेट की व्यक्तिगत वोट्स भी कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत भी इसमें सहयोग करते हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जो बधाई दे रहे थे सीपी राधाकृष्णन को, और ये तस्वीरें हम जब उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति 452 वोट लेकर। और जो मैं बता रहा था आपको कि लोकसभा में अगर हम वर्तमान में बात करें तो एनडीए के पास कुल 425 वोट थे। 425 में, माफ कीजिए, मैंने शुरुआत में 452 वोट बोले थे एनडीए के पास, 425 थे कुल वोट। 425 में से सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल किए। ये यहां पर दिलचस्प बात है। एनडीए के पास 425 वोट थे, लोकसभा के 293 और राज्यसभा के 132 मिलाकर, और इंडिया गठबंधन के पास कुल 311 वोट थे, लोकसभा के 234 और राज्यसभा के 77 वोट मिलाकर। कुछ पार्टियां इस चुनाव से अलग रहीं, जिसमें बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी ओडिशा की, वो 7 सीटों पर उनके पास 7 सीट थी, उन्होंने वोट नहीं किया। बीआरएस जे चंद्रशेखर राव की जो तेलंगाना की पार्टी है, उन्होंने वोट नहीं किया। अकाली दल ने भी अपने आप को इस चुनाव से दूर रखा, और कुछ निर्दलियों को लेकर भी संशय था कि वो भी वोट नहीं करेंगे। लेकिन एनडीए के पास 425 सांसद थे और एनडीए के उम्मीदवार ने हासिल किए 452 सांसद। तमन्ना, बिल्कुल बिल्कुल नासिर जी, लगातार देखिए इसी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्रॉस वोटिंग का वो जो एक खतरा नजर आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि एनडीए के लिए खतरा हो सकता है, कहीं वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरा ना हो जाए। वैसे देखा जाए तो विपक्ष के 324 सांसद थे, लेकिन क्योंकि कुछ पार्टियों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उस लिहाज से ये जरूर माना जा रहा था कि चलिए जो इंडिया गठबंधन के साथ है, जो सीधे तौर पर साथ है, तो वो तो सीधा के तौर पर विपक्ष के कैंडिडेट को अपना मतदान करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी कि क्रॉस वोटिंग का जो वो डर था वो बी सुदर्शन रेड्डी के केस में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरह से एनडीए के खाते में चला गया आखिर, और एनडीए को इसका काफी फायदा मिला। आरती, तो एक बार हम बयान सुनाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, पीसी मोदी कर रहे थे, निर्वाचन अधिकारी 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के जो बनाए गए थे, किस तरह से उन्होंने घोषणा की है भारत के नए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जो मतदान हुआ उसको लेकर एक बार सुनाता हूं। लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 425 वोट थे, एनडीए के पास 452 वोट हासिल किए एनडीए के प्रत्याशी ने। मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। तो ये बयान आप सुन रहे थे, घोषणा हो चुकी है औपचारिक रूप से। तमन्ना, क्या कहेंगी? बिल्कुल, देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर जो है अब सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति हो चुकी है। सीपी राधाकृष्णन ने जो है चुनाव जीत लिया है, क्योंकि मुकाबला काफी टक्कर का था। दोनों ही जो प्रत्याशी थे वो काफी ज्यादा मजबूत थे, और हालांकि जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरह से 300 जो वोट है वो इंडिया के प्रत्याशी को मिले हैं, और इसके साथ ही एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने जीत दर्ज की है 452 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। 152 वोटों का तकरीबन ये जो फासला रहा है, काफी दिलचस्प है ये आंकड़े, क्योंकि जिस तरह से टक्कर देखी जा रही थी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच, अपने आप में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस जो है दावा जरूर कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जो दावा किया था 15 वोट जो है कांग्रेस को उस दावे से कम मिले हैं। तो अभी भी जो सांसदों का
आंकड़ा था उस हिसाब से ये जो जीत के आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, जो कि जीत जिन्होंने दर्ज की है सीपी राधाकृष्णन ने, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल भी है। साथ ही बधाई का भी जो है अब लगातार सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्हें बधाई देने के लिए लगातार जो सांसद हैं, जो मंत्री विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ओम प्रकाश धनखड़ जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। नमस्कार। जी, नमस्कार। और कैसे हैं सर आप, क्या कहेंगे एक और शानदार जीत एनडीए गठबंधन की? बड़ी शानदार खुशी है एनडीए की। 452 वोट मिले सीपी राधाकृष्णन जी को जी। और 152 वोटों से वो विजयी हो गए हैं। और ये बहुत ही ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी जो है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तमिलनाडु के सांसद भी रहे। तो मुझे लगता है कि दक्षिण से आने वाला, तमिलनाडु से आने वाला भारत का उपराष्ट्रपति एक नए इतिहास की रचना हुई है जी, और शानदार उपराष्ट्रपति साबित होंगे। और एनडीए को, खासतौर से बीजेपी को, अब जो एक कोशिश की गई थी कि दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत किया जाए, तो उस दिशा में कदम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। देखिए जी, सदा से इस बात के मैं कहूँगा अगुवाई करते रहे हैं कि ये पूरा भारत, इसकी एकात्मता, वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है जी। और जिस प्रकार से कांची और काशी का मिलन, आपको याद होगा, हजारों लोग तमिलनाडु से काशी आए, काशी से कांची गए। भारत मंडपम जैसे नाम दिल्ली में जी, दक्षिण भारतीय नाम संस्थानों को दिखने लगे, जिसमें G20 की बैठक हुई। तो हर राज्य का, जैसे अब भारतीय जनता पार्टी और सरकारें भी एक दूसरे राज्य के महत्वपूर्ण, तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना से जिस प्रकार से पीएम जोड़ते हैं पूरे देश को, तो ये वो भावना शुरू से भारत की है ही, क्योंकि भारत है ही यहाँ से तो हिमालय। माँ कन्याकुमारी तमिलनाडु के किनारे पर है, तो भगवान शिव हिमालय पर है। तो ये भारत तो पहले ही एक है, लेकिन इसकी एकात्मता के भाव को, उसे मजबूती के साथ सने सने अनेक महापुरुषों ने खड़ा किया है। और ये भी एक बड़ी कड़ी जो आप कह रहे हो जी, सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी उस घटनाओं के एक, मैं कहूँगा कि शानदार साक्षी बन रहे हैं। शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़ जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि हम कार्यकाल के लिहाज से देखें तो 17वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन व्यक्ति के लिहाज से देखें तो वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जिनको 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में 452 वोट मिले हैं, और उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी, उनको मिले हैं 300 वोट। एक बार आपको फिर से सुनाते हैं किस तरह से पीसी मोदी, जो निर्वाचन अधिकारी इस चुनाव के बनाए गए थे, उन्होंने घोषणा की किस तरह से किसको कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट मिले, वो भी आपको सुनाते हैं। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी हैज सिक्योर्ड 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स एंड श्री सीपी राधाकृष्णन हैज सिक्योर्ड 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। तो सीपी राधाकृष्णन को लेकर यह घोषणा हो चुकी है कि भारत के उपराष्ट्रपति अब सीपी राधाकृष्णन होंगे, 15वें उपराष्ट्रपति। आरती हम बात कर रहे थे कि अगर व्यक्ति के लिहाज से हम देखें तो वो 15वें हैं, लेकिन कार्यकाल के लिहाज से, क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति ऐसे भी रहे जिनका 2 कार्यकाल उनके, वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति ने, तो उस हिसाब से वो 17वें उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात हम जो देख रहे थे, लगातार तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। एक आवाज़ विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए वोट करें सांसद, तो वही अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और वो बीजेपी के पक्ष में गई है, एनडीए के पक्ष में गई है।
बिल्कुल, देखिए जिस अंतरात्मा की आवाज वो कह रहे थे, और लगातार देखिए हमने ये भी देखा है कि इसे ना केवल अंतरात्मा की आवाज बल्कि लोकतंत्र की जीत, संविधान की जीत, तमाम तरह के नारे इंडिया गठबंधन ने दिए हैं। इंडिया गठबंधन के अगर हम उनके पूरे विपक्ष की लॉबी को देखें, पूरे विपक्ष के ही कुछ ऐसे दल थे जिन्होंने पहले ही इस चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ऐसे विपक्ष के वोटों में पहले ही कमी आ गई थी। दूसरी बात, क्रॉस वोटिंग का डर था, लेकिन ये डर एनडीए से ज्यादा फिर भी इंडिया गठबंधन को ही रहा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पाले में उतने वोट नहीं थे जितने की उन्हें दरकार थी। ऊपर से वोटों की वो हानि, वो नुकसान अब रिजल्ट के तौर पर भी सामने आया है, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और ये जो क्रॉस वोटिंग है ये सीधे एनडीए के खाते में गई है, और एनडीए को ये एक तरह से कह सकते हैं बड़ा बहुमत ही मिला के, क्योंकि जिस बहुमत के आंकड़े की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा ये आंकड़ा हम देख रहे हैं। अब देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विचारधारा की, तो ये तमाम विषय बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के दो नेताओं को आमने सामने देखते हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिहाज से देखा जाए, बी सुदर्शन रेड्डी, उनका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है वो न्यायिक रहा है, यानी कि वो कोर्ट से जुड़े रखे हैं, और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उनका एक पूरा राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक पकड़ उनकी ज्यादा मजबूत रही, और व्यक्तित्व राजनीति के लिहाज से ज्यादा उनका प्रभावी रहा, इसका उन्हें फायदा मिला है। और जो उम्मीद बी सुदर्शन रेड्डी को मिलने की उम्मीद थी कि एक उनके पक्ष में विचारधारा जाएगी, लेकिन वो शायद राजनीतिक परिवेश उनका नहीं रहा, कहीं ना कहीं इसका भी उन्हें नुकसान मिला होगा। हालांकि विश्लेषण का विषय है और इस पर विश्लेषण होगा भी, क्योंकि अभी तो केवल नतीजे आए हैं, विश्लेषण होना बाकी है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें जो स्थिति अब बनी है, देखिए कुल 425 वोट एनडीए के पास थे, इनमें लोकसभा में 293, राज्यसभा में 132, और बीजेपी, जहां तक एनडीए की हम बात करें, बीजेपी की बात करें, 240 लोकसभा, 102 राज्यसभा बीजेपी के थे। सहयोगी दल इसमें टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, एजीपी और तमाम अन्य दल थे। इंडिया गठबंधन के कुछ ऐसे विपक्ष के दल थे जिन्होंने पहले ही इस वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। तो इंडिया गठबंधन के जिस एकजुटता की जरूरत थी, जिस एकजुटता को बनाने का प्रयास इंडिया गठबंधन ने किया था, वो कहीं ना कहीं चूक गए हैं। एक वजह ये भी कह सकते हैं कि बिहार चुनाव पर बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस था इंडिया गठबंधन का, और शायद वो फोकस वो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में नहीं दिखा पाए हैं। तमन्ना, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि कुल जो सांसद थे लोकसभा राज्यसभा को मिला के वो 781 थे, बहुमत का आंकड़ा 385 था, और 385 के उस आंकड़े को पार करते हुए सीपी राधाकृष्णन ने जो शानदार जीत दर्ज की है, 67 वोट उन्हें ज्यादा मिले। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन और बीजेपी का एनडीए गठबंधन, दोनों की ओर से काफी स्ट्रांग दावेदार उतारे गए थे, और दोनों में मुकाबला भी काफी टक्कर का था। एक अच्छा राजनीतिक जो करियर है वो भी सीपी राधाकृष्णन का रह चुका है। हालांकि पहले से ही अटकलें तो लगाई जा रही थी कि सीपी राधाकृष्णन ही विजयी हो सकते हैं, लेकिन मुकाबला जो था उनका वो काफी दिलचस्प था, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी के साथ उनका एक टक्कर का मुकाबला था। अशोक जी, कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे थे, आप दिखाते रहिए ग्राफिक्स वगैरह जो भी आपके पास चीजें आ रही हैं। और अगर बात की जाए तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो यही है कि अब भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन उनका पूरा नाम है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, आरएसएस के बैकग्राउंड के चलते उन्होंने आरएसएस में बहुत अहम जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, और झारखंड, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। 20 अक्टूबर 1957 में उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु विश्वविद्यालय से ही उन्होंने स्नातक किया था, ग्रेजुएट वो बने थे, ग्रेजुएशन उन्होंने किया था, और पीएम मोदी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और करीब 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से वो जुड़ गए थे, और आरएसएस में काम करते हुए उन्होंने आरएसएस में प्रांत संचालक के रूप में भी काम किया। लोकसभा के सदस्य भी रहे 1999, 2004, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता राजीव जेटली जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजीव जेटली जी। हाँ, नमस्ते नासिर भाई। राजीव जी, बधाई पहले तो कि एनडीए के प्रत्याशी को जीत मिली है, शानदार जीत मिली। और जिस तरह से हम वोट की अगर बात कर रहे थे, तो जो बीजेपी के पास आंकड़ा था उससे ज्यादा उनको वोट मिले हैं। देखिए, ये बात हमने पहले ही कही थी, क्योंकि जो लोग देश से प्यार करते हैं, ईमानदारी से वोट करते हैं। अब आप देखिए, विपक्ष हम पर इल्जाम लगाता है, जब भी हम कोई चुनाव जीतते हैं, राज्यों के अंदर जीतते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जीतते हैं, तो हमेशा ईवीएम को दोष दिया जाता है। अब तो वो लोग वोटिंग करने वाले थे जो लोग लोगों द्वारा चुने गए। तो आप ये सोचिए, जो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे अगर वोट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट आपके सामने इस तरह के आ रहे हैं, तो क्या वो जनता का कसूर मानते हैं उन्हीं के नेता, कि उनके नेताओं, जनता ने उनके नेताओं को कैसे चुन लिया? तो आप ये सोचिए कि जो देश को वोट कर रहा है, ईमानदारी को वोट कर रहा है, अच्छे नेतृत्व को वोट कर रहा है, वो चाहे जनता हो, चाहे वो विपक्षी दलों के नेता हो, अगर वो ईमानदारी से वोट करेंगे तो एक बेहतर नेतृत्व का चुनाव करेंगे। वो नेतृत्व का चुनाव जैसे आपने आज देखा
आपके सामने वो कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में सामने भी देखने को मिल रहा है। अरविंद जेटली जी, ये जो अब देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ को लेकर भी तरह तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते रहे। एक आवाज आप सुन रहे थे विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष के जो प्रत्याशी थे वी सुदर्शन रेड्डी, वो कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए, देश के लोकतंत्र के लिए वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए। उस आवाज के पीछे की वजह क्या थी? बिल्कुल सुनिए, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात विपक्ष क्यों कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो मांग उन्होंने करी थी वही सांसदों ने उनकी मांग सुनी। अच्छा। और जिनको उन्हें बेहतर लगा उसी को वोट किया। जो मांग रेड्डी साहब ने की थी कि देश को वोट कीजिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए और संविधान को बचाने की लड़ाई में आप वोट कीजिए जी। उनकी सारी मांगे जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट ने मांग ली है। इसी वजहों से आज एनडीए की भारी जीत आपके सामने देखने को मिली। क्या एनडीए को कहीं ये शक या संशय था कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? नहीं, उनका संशय और शक तो आपको पता है कि उन्होंने अपना एक तकिया कलाम बना लिया है और वो परमानेंट बन चुका है, हर चुनावों से पहले बन गया है। अगर वो आज भी ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि आपकी इस कमजोरी की वजह, जनता द्वारा आपके नकारे जाने की वजह, अगर उसके गहराई में जाकर के अभी भी नहीं सुधरेंगे तो इनकी राजनीतिक पार्टी का क्या होगा, इनके कार्यकर्ताओं का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अब बन चुके हैं और उन्होंने 452 वोट हासिल किए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन काम करेंगे। वो देश के दूसरे नागरिक भी इसके साथ ही बन चुके हैं।